गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, रेस्पिरेशन चैप्टर के हमने बहुत सारे एस्पेक्ट क्लियर किए थे, लेकिन कुछ सब टॉपिक बाकी थे जो कि इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एम्फीबॉलिक पाथवे। इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पूरे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें और बोर्ड पे पूरा फोकस दें। So let us start about the electron transport chain, which is also called as electron transport system or terminal oxidation. In the mechanism of cellular respiration, when we are looking towards the glycolysis, then second phase is acetylation, and third phase of the cellular respiration is TCA cycle, which is also called as Krebs cycle. So glycolysis is taking place in the cytoplasm of the cell, which consisting on 10 different reactions. All these 10 different reactions discovered by 3 German biochemists, Embeden, Meyerhoff and Pernus. That's why glycolysis is also called as EMP pathway. But the most important thing is, in the reaction number 6 of glycolysis, 2 molecules of NADH are produces. This NADH molecule encloses or store the energy. This energy can only be extracted when this NADH molecule get oxidized through the electron transport chain. Okay. Secondly, in the mechanism of acetylation and TCA cycle, both are taking place in the matrix of mitochondria. Through the acetylation, again 2 molecules of NADH molecule are produces. This acetylation consisting on only 2 steps or only in 2 reactions. First one is decarboxylation and second is dehydrogenation. After that dehydrogenation, acetyl group is formed, which continue the TCA cycle. So this acetylation connect glycolysis and TCA cycle. Therefore it is also called as link reaction. When you are looking towards the TCA cycle or Krebs cycle, total 8 times dehydrogenation occurs, but 6 times dehydrogenation takes place with the help of NADH molecule and 2 times by FADH2 molecule. So these are the reduced coenzymes like NADH, FADH, which store the energy. I am revising once again. If you want to extract the energy from NADH molecule or FADH molecule, you should have to oxidize this molecule through the electron transport system or electron transport chain. This electron transport chain or electron transport system is taking place at the inner membrane of mitochondria. So this is the site of ETC, okay, at the inner membrane of mitochondria. You know that mitochondria is elliptical shaped organelle. It is bounded by 2 membranes, outer and inner. Inner membrane form the finger-like infolding, which are called as cristae, and this is the site of electron transport chain, that is inner membrane of mitochondria. देखिए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो साइट है, इसे इनर साइट कहा जाएगा। कंप्लीट मेम्ब्रेन इनर है, लेकिन उसमें भी 2 फेसेस है या 2 सरफेसेस है, इनर सरफेस एंड this part is called as outer face of the inner membrane. Inner side of inner membrane towards the matrix of mitochondria, and outer side of the inner membrane is towards the intermembrane space.
This space encloses by outer and inner membrane is called as what? Intermembrane space. So what is the significance of electron transport chain? मैं यहां पे आपको आउटलाइन बताने जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक थीम बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस पार्ट में होगी, यहां पे बहुत सारे कैरियर्स हैं। फॉर एग्जांपल, पहला कैरियर है NADH, फिर इसके बाद में अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर आपको मिलेगा साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BC1 के बाद में आपको मिलेगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, दिस इज कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 2 यहां पर बीच में प्रेजेंट नहीं होता है, उसका मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा। ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। फाइनली इलेक्ट्रॉन जाता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास में, तो NADH से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम BC1 अपना इलेक्ट्रॉन पास कर देगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के पास, और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देगा ऑक्सीजन के पास। सो दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन or electron transport system. So when electrons are moving from one carrier to another carrier, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा elongate कर देता हूँ, और मान लीजिए कि येलो मार्कर से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में यहाँ पे ड्रॉ किया, तो एक कैरियर से जब दूसरे कैरियर पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सो दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूवमेंट के दौरान इनकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, और इस एनर्जी की हेल्प से मैट्रिक्स से प्रोटॉन मूव कर जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बाय क्रॉसिंग द इनर मेम्ब्रेन। मींस somewhat like this. So electrons are moving from matrix to intermembrane space because proton मैट्रिक्स जो होता है वो प्रोटॉन रिच होता है, बहुत सारे प्रोटॉन मैट्रिक्स में होते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता जाएगा, प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते जाएंगे। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, फिर ये प्रोटॉन वापस मैट्रिक्स में आएंगे, लेकिन अब आते समय इन प्रोटॉन्स को F0 F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू आना पड़ेगा, जिसे आप ATP सिंथेज भी कह सकते हैं। और जब ये प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स वापस आना शुरू हो जाएंगे F1 F0 कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तब ATP जनरेट होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। सो दिस इज द मोटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आपको बच्चों कैलकुलेशन बहुत अच्छे से याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस से कितने NADH2 प्रोड्यूस हुए, एसिटाइलेशन और TCA cycle. FADH2 is only produces in the TCA cycle, not into the glycolysis or acetylation. So let us magnify this much part of the inner membrane of mitochondria, and we are moving towards the mechanism of electron transport chain. Okay. So let us consider there are 5 कॉम्प्लेक्सेस। पहले मैं आपको यह बता दूं कि 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। सबसे पहला होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का एक्चुअल नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक एक चीज इसमें की ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। So what is complex first? Complex first is NADH dehydrogenase. Complex second,
हाँ, so complex second is FADH2. It is related to the enzyme succinate dehydrogenase. This enzyme catalyzes the reaction conversion of succinic acid into the fumaric acid. In between that, FADH2 is generated. Now, there is a one electron carrier known as ubiquinone. This ubiquinone get reduced into ubiquinol H2. देखिए UQ ऑक्सीडाइज स्टेट में है, मतलब विदाउट हाइड्रोजन, तो इसका नाम रहेगा यूबिक्यूनॉन। लेकिन जब हाइड्रोजन रिसीव करके रिड्यूस हो जाएगा तब इसका नाम हो जाएगा यूबिक्यूनॉल। तो आखिरी में सफिक्स आपको ध्यान में रखना है, यूबिक्यूनॉन कब कहेंगे और यूबिक्यूनॉल कब कहा जाएगा। विदाउट हाइड्रोजन it is ubiquinone, and with hydrogen that is reduced form is called as ubiquinol. Now it is a time to write the complex number third. Here is complex number 3. Complex third. The name of this complex third is cytochrome B(C)1 complex. Okay, and then fourth complex is here. Complex number 4th. The name of this complex is cytochrome C oxidase, which is made up of cytochrome A and cytochrome A3 along with 2 copper center. Copper center number A and this is copper center number B. Okay, यहाँ पर आयरन सल्फर प्रोटीन रहेगा और कॉम्प्लेक्स सेकंड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के भी पास में आयरन सल्फर प्रोटीन रहेंगे। तो ये एक डायग्रामेटिक स्कीम है जिससे मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स 1 के बाद डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 3 क्यों आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स 1 के बाद कॉम्प्लेक्स 2 नहीं आएगा, तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग है। देखिए NADH रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स 1 अपने प्रोटॉन्स डायरेक्ट किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को, वाया यूबिक्यूनॉन, मतलब थ्रो द यूबिक्यूनॉन। तो मैं इस एरो को इस तरह से ड्रॉ करता हूं, तो ये चेन आपका इधर का पार्ट एक अलग बन रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो कॉम्प्लेक्स 1 फिर डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 3 फिर कॉम्प्लेक्स 4, इतनी रिएक्शन सेपरेट होगी। फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स 2 वाला पाथवे अलग है, मतलब ये रास्ता आपका इधर से जाएगा। तो फर्स्ट के रास्ते में सेकंड नहीं आएगा और सेकंड के रास्ते में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, दोनों भी सेपरेट सेपरेट स्टेट में दिए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स 2 भी अपने हाइड्रोजन यूबिक्यूनॉन को दे देगा। तो दोनों रिएक्शन एट अ टाइम नहीं होती है, अलग अलग वक्त पे रिएक्शन होती है। NADH का अपना ऑक्सीडेशन होगा और FADH2 का अपना खुद का अलग ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म होगा। अब हम देखते हैं कि जिस तरह NCERT बुक में डायग्राम दी हुई है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उस डायग्राम में क्या किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स 2 को बीच में रख दिया, यहां पर इस लोकेशन पर, मतलब कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में। ओके, फिर से यूबिक्यूनॉन लिखा हुआ है, लेकिन अपन सिंप्लीफाई ऐसे स्टडी करेंगे कि ये एक अलग पाथवे रहेगी और उधर का एक अलग पाथवे रहेगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन for complex number 1, that is for NADH dehydrogenase complex। एकदम ध्यान से देखना है बच्चों आपको। Let us consider this is first complex, NADH reductase। फर्स्ट के बाद में डायरेक्टली थर्ड कॉम्प्लेक्स आएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट के रास्ते में सेकंड कभी भी नहीं आता है, एंड दिस इज सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ कॉम्प्लेक्स। ये तीनों कॉम्प्लेक्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एम्बेडेड होते हैं। सो लेट अस कंसीडर दिस इज द लिपिड बाइलेयर एंड complexes are nothing but the intrinsic
or they are integral protein. Integral protein means complexes. Okay. तो ये 3 complexes हैं. The first complex is this, that is यहाँ पे लिख देता हूँ रोमन नंबर से first, means it is a complex number 1. When NADH molecule get oxidized, it will form NAD plus, it will form NAD plus and proton. Already protons are rich in the matrix of mitochondria. So this much part is a matrix and upper part is intermembrane space. This is outer surface of inner membrane and this is inner surface of the inner membrane. So matrix is already rich in the proton gradient, but proton gradient must have to change. Means proton must have to flow from matrix to इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. तो अभी देखिए क्या होगा कि NADH मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पास कर देगा कॉम्प्लेक्स 1. तो कॉम्प्लेक्स 1 में सबसे पहला कंपोनेंट होता है FMN. ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछता है कि विच आर द कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स 1. कॉम्प्लेक्स 1 के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको ध्यान में रखना है, FMN एंड आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स. FMN का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, FMN. Okay, now this FMN donate its electron to the iron sulfur complex. देखिए एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, दिस आर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन मूव जब करेंगे तो इनकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी और एनर्जी प्रोटॉन्स को मिलेगी ताकि प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जा सके. इस पाथवे के दौरान बच्चों होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मैट्रिक्स प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से निकलकर, ध्यान से देखिएगा, आउटर चैम्बर में पास हो जाते हैं. So 4 protons are moving when electrons are transporting in the complex number 1. I am revising once again. जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से ट्रेवल करते हैं तब कॉम्प्लेक्स 1 की वजह से 4 प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर है मेम्ब्रेन के अंदर UQ. लास्ट स्लाइड में मैं इसका नाम बताया आपको, यूबीक्यूनॉन. कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आयरन सल्फर प्रोटीन इस यूबीक्यूनॉन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन यूबीक्यूनॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिसीव करके स्टेबल नहीं हो सकते हैं. इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, यूबीक्यूनॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके स्टेबल नहीं रह सकते हैं. इसीलिए यूबीक्यूनॉन पेयर ऑफ प्रोटॉन को मैट्रिक्स से अपने पास बुला लेगा. तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यूबीक्यूनॉन आपका कन्वर्ट हो जाएगा यूबीक्यूनॉन H2 मींस रिड्यूस्ड फॉर्म, और इस रिड्यूस फॉर्म का नाम है यूबीक्यूनॉल. आखिरी में सफिक्स आएगा बच्चों OL. ओके, अब यहां पर यूबीक्यूनॉल जो है हाइड्रोजन्स को यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन को ज्यादा देर अपने पास नहीं रख सकता है. तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा अपने पास से जहां पे हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग होगा. तो देखिए वापस से, अब इसने अगर मान लीजिए हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो वापस से क्या बन जाएगा, यूबीक्यूनॉन. कहां गए ये हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास. ओके, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा येलो पिंक कलर मार्कर से, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड. ओके, तो हाइड्रोजन का यहां पर स्प्लिटिंग हुआ, प्रोटॉन्स चले जाएंगे ऊपर, मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में. कितने प्रोटॉन्स? 2 प्रोटॉन्स. तो सेम कलर की पेन यूज करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए अपने को. सो पेयर ऑफ प्रोटॉन्स
यहां हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग हुआ ना, तो पेयर ऑफ प्रोटॉन चले गए, बचा कौन? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट रिसीव्ड बाय साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू iron sulfur complex. From iron sulfur complex, electron again travels to the cytochrome C. Complex 2 के कंपोनेंट सीक्वेंस वाइज याद रखना है आपको, साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर प्रोटीन एंड साइटोक्रोम सी. नाउ ड्यूरिंग दिस ट्रेवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन energy of electron get extracted and the pair of protons are moving from matrix of mitochondria to the outer chamber. Got it? अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है? साइटोक्रोम सी के. साइटोक्रोम सी के पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन. नाउ इन दिस टाइम one is a mobile electron carrier which is located at the outer side of the inner membrane. कॉम्प्लेक्स 2 के बाद, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स 2 नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ठीक है, इसको याद रखना है. इट इज कॉम्प्लेक्स 3. हाँ चलिए, तो ये करेक्शन करने के बाद में साइटोक्रोम सी के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड में एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है. द नेम ऑफ दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इज साइटोक्रोम सी, एंड साइटोक्रोम सी हैव एबिलिटी टू रिसीव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम. एंड एज इट इज इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर बट मोबाइल इन नेचर, so this cytochrome C takes 1 electron from cytochrome C और ये इलेक्ट्रॉन ले जा करके खुद किसको देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को. इट इज कॉम्प्लेक्स 4. कॉम्प्लेक्स 4 इज मेड अप ऑफ 2 कॉपर सेंटर, कॉपर सेंटर A एंड कॉपर सेंटर B. तो देखिए अब साइटोक्रोम C ने जो इलेक्ट्रॉन ला करके दिया है वो इलेक्ट्रॉन कैसे पास होते हैं. सबसे पहले कॉपर A, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे कॉपर A से लेकर के साइटोक्रोम A के पास में. साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए कॉपर सेंटर B, एंड कॉपर सेंटर B से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइनली मूव हो जाएंगे साइटोक्रोम A3 के पास. सो दिस कॉम्प्लेक्स 4 इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स. ओके, अभी इलेक्ट्रॉन किसके पास में है? साइटोक्रोम A3 के पास. एक एक करके 2 मर्तबा साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन ला करके दे दिया. पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके साइटोक्रोम A3 के पास में आ गए. अब देखिए साइटोक्रोम A3 अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पुश कर देगा. मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है molecular oxygen. This molecular oxygen receive the pair of electron and become half O2 dinegative. जैसा मैं आपको पहले ही बताया कि matrix of mitochondria is rich in the proton. तो pair of proton यहां पर आएंगे. Just a second. Pair of proton, and this pair of proton get combines with half O2 dinegative. It will form the water molecule. This water is called as metabolic water. The most important word for the water molecule which is formed at the end of electron transport system. Which type of water is formed? Metabolic water. And when electrons are moving from cytochrome A to cytochrome A3 via copper centers, pair of protons are moving due to extraction of energy of electrons from complex number 4. So this is the electron transport chain due to complex number 1. एक मर्तबा बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए इसको.
रिवाइज कीजिए और अपने रजिस्टर में एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसको। ओके, नाउ it is a time for calculation the number of proton moving from matrix to intermembrane space due to oxidation of one molecule of NaDH2. It is a most important calculation. So I am writing over here that for one molecule of NaDH, or when one molecule of NaDH get oxidized, then electron generate energy, and with the help of that energy, how many protons are moving from matrix to intermembrane space? We are counting here 4 proton due to complex number 1, total of 4 protons from complex number 3, okay, and again 2 protons are pumped due to complex number 4th. So 4 plus 4 plus 2 become 10. So when one molecule of NaDH get oxidized through electron transport chain, it will generate the 10 protons. याद रखिएगा, आगे कैलकुलेशन में आसानी जाएगी। अभी होगा क्या कि मैट्रिक्स से जब प्रोटॉन ऊपर चले गए तो मैट्रिक्स में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो गया और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ गया। दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट is called as electrochemical gradient. Electrochemical gradient of proton. दूसरी बात, प्रोटॉन्स जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आए हैं तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, और अपोजिट चार्जेस हो जाएंगे इनर फेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन की तरफ, जैसे एनसीईआरटी बुक में डायग्राम के अंदर दिया हुआ है। ये न्यू बुक की डायग्राम है, लेटेस्ट जो बुक अभी पब्लिश हुई है, तो आप देख लीजिए, वो इन वर्टिकल डायग्राम है, मैं कन्वीनियंस के लिए आपके हॉरिजॉन्टल डायग्राम ड्रॉ किया हूं। सो देखिए, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5 बाकी रह गया बच्चों। सो कॉम्प्लेक्स 5 इज प्रेजेंट सेपरेटली in this side, and this complex 5 is made up of F0 F1 complex. Here this is F0 subunit, okay, and this is F1 subunit facing towards the matrix. F1 is facing towards the matrix, okay. Together it is also called as oxysome or ATP synthase. When the proton gradient get increases at the intermembrane space, then proton motive force is generated. With the help of that proton motive force, proton try to move from intermembrane space into the matrix of mitochondria, but this proton can be moved only through the F0 F1 complex. देखिए, एनर्जेटिक प्रोटॉन्स हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालकर इन प्रोटॉन्स को दिया गया था ताकि मैट्रिक्स से ऊपर जाएं, तो एनर्जी प्रेजेंट है प्रोटॉन्स में। अब ये एनर्जेटिक प्रोटॉन जब वापस मैट्रिक्स में आएंगे तो सिर्फ कहां से ट्रैवल करना पड़ेगा इनको? F0 F1 कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो F0 F1 complex, which is also called as ATP synthase, when the pair of protons are moving inside the F1 complex, catalytic center is present. Catalytic center means the center which extract the energy of proton and combine ADP and IP to produce the ATP molecule. So one ATP molecule is produces when 4 protons are moving from इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स। मैं फिर से एक बार तब आपको यहां पे बता दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। जब 4 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आएंगे तब एक एटीपी जनरेट होगा। आ जाइए इधर कैलकुलेशन की तरफ। When one molecule of NaDH get reduced or oxidized
10 protons are produces. 4 protons give us 1 molecule of ATP. 4 प्रोटॉन एक एटीपी हमको देते हैं, कब? जब वो इंटरमेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में आएंगे। तो 10 प्रोटॉन कितने एटीपी देंगे? 10 में देखिए 4 + 2 यानी 1 एटीपी + 1 एटीपी + हाफ एटीपी, so it will become 2.5 ATP. This 10 molecules or 10 proton gives us 2.5 molecules of ATP, which is nearly equals to 3 ATP. ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आपका यहां पे डेवलप हो जाएगा अगर आप इस कैलकुलेशन को समझेंगे। 4 प्रोटॉन 1 ATP, 10 प्रोटॉन 2.5 ATP, नियरली इक्वल टू 3 ATP। अब आपको कंक्लूजन ये ड्रॉ करना है कि 1 NADH2 मॉलिक्यूल गिव अस 1 NADH मॉलिक्यूल गिव अस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। याद रख लीजिएगा इसको, आगे काम में आने वाला ही अपने को। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर